So, in the last class, we discussed about the communication, basics of communication, and now we will discuss what are the various types and models of communication. तो बहुत ही वेज हैं, लीनियर मॉडल है, देन ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इंटरैक्शनल मॉडल है, इंटरपर्सनल मॉडल है, इंट्रापर्सनल मॉडल है, and then there are various communication types also. So we will discuss the model. First is linear model. Simple बात, as the name suggests, it's linear. It is one-way communication, generally mass communication, television, radio, newspapers. It is more sender-centric. जो sender भेज रहा है information, वही है. There is no feedback option, and that is why it's a linear model of communication. It is called one-way communication. डेफिनेटली सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर फॉर्मूला इसमें भी यूज़ होता है. देयर इज़ अ सोर्स, द पर्सन हु इज सेंडिंग द कम्युनिकेशन. देयर इज़ अ मैसेज, then there is a channel through which the communication is sent, and then there is a receiver who receives the communication. So the यही model for there are many various forms. The SMCR model, which is exactly the same: sender, message, channel, receiver. Then there is Shannon and Weaver model. That was the first model to introduce noise, the concept of noise. Shannon and Weaver model, that is also this almost the same: sender, मैसेज, चैनल, रिसीवर. हम वही थ्योरी उसमें भी यूज़ करते हैं. वन इम्पॉर्टेंट जो मॉडल इसमें होता है, दैट इज एरिस्टोटल्स मॉडल. एरिस्टोटल नेम यू हैव लिसन, सिकंदर अलेक्जेंडर के गुरु थे एरिस्टोटल, एंड ही फोकस्ड ऑन ए परसुएसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन. हाउ from the means of communication you can persuade someone, you can convince someone, you can affect someone. So he used the principle speaker, speech, occasion, audience and effect. Who is the speaker? The speaker is the central figure who is delivering the communication. Speech वही है जिसको हम मैसेज बोलते हैं, बट इन द परसुएसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन इट इज स्पीच बिकॉज वी वांट टू परसुएट समवन. Then there is occasion. What occasion it matters, what occasion you are in, you are delivering the speech and you need to tailor the communication according to the speech. Who is the audience and what is the effect on the audience. सो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने और बताई थी जो आपने अभी सुना: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट. एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई: इथोस, पैथोस एंड लोगोस. इथोस का मतलब है योर इथिक्स, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द स्पीकर, योर स्पीच, योर कैरेक्टर. पैथोस मतलब योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. And logos, how you can present a logical and well reasoned argument, that is called the logos. That is another important part of it. अब उसमें एक और कम्युनिकेशन का मॉडल, इसको बोलते हैं लैसवेल मॉडल. लैसवेल मॉडल सेज हु, उन्होंने 5 भागों में लैसवेल ने डिवाइड किया है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. हु सेज व्हाट टू whom, who says what to whom, in what channel, with what effect. Almost the same, but they are different models. Who says what to whom, says what to whom, in what channel, with what effect. Who is the sender, says what the message, to whom is the receiver, in what channel, the medium of communication, and with what effect. What is the impact of your saying on the communication, because of the communication उस पर आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो दिस इज कॉल्ड लैसवेल्स मॉडल. अनदर नेक्स्ट इज, सो ये हो गया, हमने समझा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन देयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन गोइंग ऑन. अनदर इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सिंपल बात, ट्रांजैक्शनल, हमारी आपस की बातचीत, हमारा आपस का डिस्कशन, जिसमें वी आर नॉट वेरी फॉर्मल. वी आर जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वी आर वेटिंग कि उनकी बात खत्म हो देन वी हैव ए फॉर्मल आंसर. हम बीच में भी कुछ बोलते हैं, हम बीच में भी कुछ बातें करते हैं, और वो हो जाता है ट्रांसलेक्शनल मॉडल. तो अगर कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्लासरूम में या टीचर्स जो है वो बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यही है कि पीपल आर शेयरिंग देयर आइडियाज. सो इट इज़ लाइक स्पीकर लिसनर. इसमें देयर इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. बहुत ज़्यादा आपस की बातचीत होती है.
फीडबैक बीइंग कन्वेड एज अ न्यू मैसेज, आपने किसी से बात की, उन्होंने आपको कोई फीडबैक दिया, फीडबैक मतलब कोई दूसरी बात रखी एंड दैट कम्स एज अ न्यू मैसेज फॉर यू, फिर उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। और इनकोडर और डिकोडर के बीच में एक्सचेंज ऑफ रोल्स होता है। सिंपल सी बात है, मैंने एक बात किसी को कही, आई एम द सेंडर एंड द रिसीवर, एंड उसने जो उस पर फीडबैक दिया, एक नई बात उसने कही, नाउ ही बिकम्स द सेंडर एंड आई बिकम अ रिसीवर। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब वही बात है, मैं कहूँगा कि इंटरैक्शनल मॉडल क्या है। इंटरैक्शनल मॉडल इज अ type of conversational exchange where you wait for the things to end. Encode decode. The interviewers ask a question, the person responds, but the person waits, for the message to end. So वो हो गया इंटरेक्शनल मॉडल। जब आपकी बात खत्म हुई, क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने आंसर दिया। तो दैट्स वाई क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जिस जिस तरह से होता है उसको हम इंटरेक्शनल मॉडल कहते हैं। अब आती है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? इंटरपर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल हमारे आपस की बातचीत, अभी हमने सुना ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन हो या इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन हो, हम किसी को कुछ लिख के दे रहे हैं, किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, दो लोगों के बीच आपस की बातचीत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल हमारी खुद से बातचीत, जो हमारी खुद से बातचीत होती है उसको हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। खुद से हम बातें करते हैं, या किसी को इंटरव्यू दे के हम आए, बोले यार इंटरव्यू में अच्छा हुआ, क्या मैंने ऐसा परफॉर्म किया, या क्या ऑफिस में ऐसा हुआ, जो हमारी खुद से बातचीत है उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद सेल्फ इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एंड चार्ल्स ई ऑस्गुड ने 1954 में एक चार्ल्स ई ऑस्गुड स्क्रैम मॉडल फॉर्म किया था। उनका कहना था मैसेज कैन गो इन टू डायरेक्शन। जो भी हमने बात की कि रोल एक्सचेंज होता है, द यू गिव ए से समथिंग टू समवन एंड ही रिस्पॉन्ड्स अगेन एंड इट बिकम्स ए न्यू मैसेज। तो विद दिस मॉडल ही प्रूव दैट कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर बट इट इज सर्कुलर। उससे भी बात आपके वापस आएगी। कम्युनिकेशन इज रेसिप्रोकल एंड इक्वल। कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आपने अपनी बात किसी को कही, वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है उस पर कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पे कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। तो अब दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन टाइप्स बेस्ड ऑन लेवल्स। थैंक यू।